हाँ. So the writing that we are going to do, I want you to write in order which aligns with the TCF pattern or your DELF pattern also. Pattern remains the same. So this will be your topics usually. And what is the pattern? That is a good question. आप अभी तक क्या करते हो? आप random लिखते हो. I don't want you to write random. I want you to first introduce the topic. Okay. So for example, today the topic is pensez-vous que les réseaux sociaux sont utiles dans la vie aujourd'hui? What is the meaning of réseaux sociaux? Alicia, do you Social know? network. हाँ, social network, social media. Okay. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont utiles dans la vie aujourd'hui? Do you think that social media is important in our life today? So it's an easy topic and the most common topic according to DELF or TCF. बहुत common topic है. Okay. So first you have to introduce the topic, this topic. And it's not, you don't have to introduce pensez-vous que les réseaux sociaux sont utiles. Do you think that social network is useful? You can only introduce the topic. For example, you can only talk about réseaux sociaux in the first part. Ki réseaux sociaux plays an important part in our life. It has, we do everything using social media. मतलब a Mm-hmm. 2-3 lines का introduction. Okay. Okay. Then we have to introduce the plan, जिसको हम कहते हैं le plan. Introduce the plan. What is introduction of the plan? For example, जब आपने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया ना, उसके बाद आप कहते हो in this text I am going to talk about the advantages and the inconvenience of social media. या फिर in this text I'm going to first present, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ for your reference. Dans ce texte, in this text, je vais présenter les avantages et puis je vais discuter quelques inconvénients. So for मतलब ये होता है plan. What is a plan? That I say that okay, in this text this is my topic, social media. Social media is very important. जो भी 2-3 लाइन का आपका introduction है. Then you say that in this text I am going to present the advantages and then I'm going to discuss some inconveniences. So basically आप अपने text में या आप अपनी speaking में क्या बताने जा रहे हो, वो आपको बताना है एक लाइन में, सिंगल लाइन में. अगर कभी कभी सपोज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं है, बिकॉज आपको टीसीएफ में प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिलता है. डेल्फ में मिलता है पर टीसीएफ में नहीं मिलता है बिल्कुल भी. तो आपको क्या करना होगा, इंस्टेंटली ये सोचना होगा कि मैं क्या प्लॉ होगा मेरे पूरे टेक्स्ट का. उसमें आप सिंपल ये भी कह सकते हो, इन दिस टेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया in our life. Simple. Dans ce texte, je vais présenter l'importance des réseaux sociaux dans notre vie, in our life. That's it. Okay. Now ये हो गया आपका प्लॉ, द सेकेंड पार्ट. तो पहले हो गया 3-4 लाइनों का इंट्रोडक्शन, देन हो गया आपका प्लॉ. प्लॉ के बाद कम्स योर बॉडी, मीन्स योर आर्ग्यूमेंट्स. तो इसमें क्या होता है, टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव with real life examples, minimum, actually maximum, minimum मिलेगा, चलो minimum 2. तो मतलब एक एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव की साइड. अगर आपने 3 पॉइंट्स बोले कि सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन होती है, वी कैन वॉच वीडियोस, ठीक है, वी कैन इनहांस आवर स्किल्स,
तो जब आप स्किल्स की बात करोगे तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई टेक क्लासेस, आई टेक फ्रेंच क्लासेस ऑनलाइन, and I learn and improve my French using social media. So this is your real life example. And negative क्या होगा? तो you can say कि health तो डैमेज होती ही है जब हम सोशल मीडिया बहुत ज्यादा करते हैं। और आप कुछ कह रहे हो? Yeah, no. हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि सोशल मीडिया से हमारी हेल्थ तो डैमेज होती होती है, राइट? तो आप कह सकते हो कि कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द डे आई एम यूजिंग लैपटॉप, ड्यूरिंग माई ऑफिस आवर्स आई एम यूजिंग लैपटॉप फॉर 10 आवर्स, देन फॉर माई फ्रेंच क्लासेस आई यूज लैपटॉप फॉर 2 आवर्स। सो ऐसे करके यू हैव टू टॉक अबाउट योर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो पहले टॉपिक, देन प्लान, देन आर्ग्यूमेंट में 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, then of course within the arguments only, whenever you're justifying your arguments you have to tell the examples। जो भी पॉइंट आपको ज्यादा सुटेबल लगेगा उसके साथ आपको वो वाला एग्जाम्पल देना है, ठीक है? रियल लाइफ एग्जाम्पल यू हैव टू ऐड। एंड फाइनली जब ये सब हो जाएगा देन आपको अपनी स्पीकिंग में डालना है एक कंक्लूजन। कंक्लूजन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल pour conclure je vais dire, I want to say that en conclusion, en conclusion, en conclusion je vais dire que blah blah blah। So conclusion is no addition of the point but a summarization। for example अगर हम सोशल मीडिया इस टॉपिक की बात करें, रेजो सोशियो की, तो in conclusion I can say en conclusion je vais dire que les réseaux sociaux sont vraiment importants dans notre vie et c'est utile pour améliorer nos compétences and it is useful to améliorer, to improve our competence, our skills, mais il faut limiter l'usage de réseaux sociaux pour ne pas détruire la santé। मतलब il faut limiter le usage, but one must limit the use of social media to not destroy your health। नाउ ये मैंने बोला डिपेंडिंग ऑन माय पॉइंट्स। सो आपके जो भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिखोगे उसका एक कंक्लूजन। अच्छा, अगर कभी कभी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि आपको रिकमेंडेशन देनी होती है ना? इसी टॉपिक की बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो हमने 3 पॉजिटिव बताया 2 नेगेटिव, तो आप उसकी रिकमेंडेशंस भी दे सकते हो, मतलब सॉल्यूशंस, how to manage। So you can say that, for example, we can limit the use of phones, ठीक है? We can use phones not to watch random videos, but something that will enhance our skills। So, अगर एक दो solutions हैं, you can, for example, you can talk about कि आपने D&D लगा रखा है after 9 o'clock or after 10 o'clock in the night, so you'll not receive any notifications। So, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है फॉर एनी टॉपिक ना, सोशल मीडिया इज द इजीएस्ट टॉपिक जो A2 लेवल का होता है, TCF में भी और डेल्फ में भी ये हाईलाइट होता है सोशल मीडिया। phones, use of phones, should we offer phone to the kids, should kids have an account on social media, how important is social media in our life। तो ये सारा घूम फिर कर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे थे, द वे यू वर राइटिंग, इट वाज अ वेरी रैंडम कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे विदाउट एनी सिंक। नाउ यू हैव टू स्पीक। अच्छा, दिस इज ओनली फॉर द स्पीकिंग, दिस सेम, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है इन योर राइटिंग। तो अभी मैं हाउ टू राइट एन आर्टिकल की बात नहीं कर रही, दिस इज फॉर योर स्पीकिंग, हाउ टू डू अ मोनोलॉग। Okay, so do not get confused, you can write it on your heading register में कि it is for the speaking। writing का pattern अभी बताऊंगी।
ये समझ आ गया? यस। ओके। विवेक, हर्षिता, यू ज्वाइन लिटिल लेट, तो ये समझ आ गया जो मैं समझा रही थी? Yes, following through. ओके, हर्षिता। तो बेसिकली हमें एक टॉपिक पे बात करनी है, राइट? हाँ, और ये हर्षिता सेम पैटर्न है डेल्फ का, तो टॉपिक पे बात तो कोई भी कर लेता है ना। हम्म। आपको मैं बोलूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बोल दोगे, बट इसी स्ट्रक्चर में बात करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले इंट्रोडक्शन करना है 3-4 लाइनों का, फिर आपको प्लान इंट्रोड्यूस करना है कि और आपके लिए हर्षिता टीसीएफ में ये फिर भी ऑप्शनल है प्लान वाला पार्ट, डेल्फ के लिए दिस इज मैंडेटरी। ओके। ठीक है, दिस पार्ट वेर यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप अपने मोनोलॉग में क्या बोलोगे, बहुत मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। देन आप जब अपना बॉडी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करोगे, आपने बोला एडवांटेजेस, ऑल्सो एवरीवन, अगर आपने बोला अब यहाँ एडवांटेजेस की बात करोगे तो एडवांटेजेस की बात करनी है। ये नहीं कि सिर्फ प्लान इंट्रोड्यूस करना है तो कुछ भी बोल दिया कि मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा। आपको अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर आपने बोला कि मैं एडवांटेजेस पहले बताऊंगा और फिर मैं इनकन्वीनियंसेस बताऊंगा, तो पहले आपको एडवांटेजेस बताने हैं एंड देन आपको इनकन्वीनियंस बतानी है। ओके, एंड देन अगर कोई सोल्यूशन है तो आप सोल्यूशन बता सकते हो, और ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, maintenant je vais parler de quelques solutions. I am going to talk about some solutions afin de gérer les problèmes in order to solve this problem. कंक्लूजन, और फिर आपका कंक्लूजन आएगा। नाउ इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है, आपको बेसिक अपना प्रेजेंट टेंस, पासे कॉम्पोजिट, इम्पारफे आता है, फित्यूर प्रॉश आता है, आई थिंक फित्यूर सैम्पलर नहीं आता बट फित्यूर प्रॉश आता है, राइट? ये बेसिक चीज आपको आती है। सो व्हाट आई वांट फॉर ऑल ऑफ यू टू डू इज, बिना कनेक्टर्स के, नाउ ट्राई टू यूज मिनिमल यूज ऑफ कनेक्टर्स, आई टेल यू कनेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, बट टुडे आई वांट यू कि आप रेजो सोसियो पर लिखो। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डायरेक्टली स्पीक, नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, you'll first have to write in this format and then we'll do speaking. So randomly drop मत कर देना कि मेरा काम है and you just drop from the meeting. पहले speaking करके you can drop if you want. Don't randomly drop out from the meeting. ठीक है, and the topic is sujet de pensez-vous que les réseaux sociaux sont utiles dans la vie aujourd'hui? Do you think that social media is important in our life today? This is your topic for today. So please start. डेल्फ वालों के लिए जो प्रिपरेशन टाइम है वो 10 मिनट्स होता है इन द एग्जाम। टीसीएफ वालों के लिए देर इज नो प्रिपरेशन टाइम इन द एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। आपको मोनोलॉग लिख कर भी नहीं दिया जाता, दे टेल यू कि अच्छा ये आपका टॉपिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड स्टार्ट डा 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 डा। ऑफ कोर्स वी आर नॉट एट दैट स्टेज कि हम इतनी प्रिपरेशन टाइम से स्टार्ट कर ले, सो आई एम गोइंग टू गिव यू बिटवीन 15 to 20 minutes टू प्रिपेयर। यू कैन राइट इट, जिसको पॉइंट्स लिखने हैं पॉइंट्स लिखो, जिसको पूरा पूरा लिखना है पूरा पूरा लिखो, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द स्पीकिंग ऑफ दिस monologue. Any Okay. doubt? No. Okay, then please start.